Good morning, students. How are you? So, here is your Neha ma'am, and today we are going to start with chapter 2, that is your microorganisms, friend or foes. We all know that what are microorganisms. Microorganisms are so small that they cannot be seen that they cannot be seen with naked eyes. They can only be observed with a microscope. So all those organisms that are very small and cannot be seen with the naked eyes or can be seen with the help of a microscope only are called microorganisms. You must have seen a bread get grayish white patches during rainy season. आपने देखा होगा ब्रेड जब बहुत लंबे थोड़े समय तक ब्रेड को आप छोड़ देते हो फ्रिज में तो रेनी सीजन के दौरान उसमें ग्रेइश कलर की पैचेस हो जाते हैं. ओके, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी. नाउ वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? Microorganisms can be found in almost any kind of environment: hot desert, polar region, salt water, marshland, and inside other organisms. Microorganisms can survive volcanoes, deep seas, and even vacuum. So, microorganisms can be found anywhere, maybe outside, maybe in the environment or inside a body, inside an organisms, and they are capable of surviving in harsh climates also. Classification of microorganisms. Microorganisms are basically divided in 5 major groups. That is your bacteria, algae, protozoa, fungi, and viruses. Bacteria, they are simple living organisms and are mostly single-celled tiny organisms. But they live together in colonies of million. यानी जो बैक्टीरियाज होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, बट वो हमेशा कॉलोनी में यानी कि एक जुट में सर्वाइव करते हैं. बैक्टीरिया आर फाउंड इन 4 डिफरेंट शेप्स. जनरली बैक्टीरिया ज़्यादातर 4 डिफरेंट शेप्स में पाए जाते हैं. रॉड शेप्ड कॉल्ड बैसिली, राउंड और स्फेरिकल शेप्ड कॉल्ड कुकी, स्फेरिकल शेप्ड spiral shaped called spirula, and comma shaped called vibrio. Algae are the simple plant-like organisms which are usually aquatic in nature. We must know कि algae is a thallophyte. What is the meaning of thallophyte? आपने भी देखा होगा जब काफ़ी समय तक इस जगह पे पानी भरा हुआ रह जाता तो ग्रीन कलर का एक सरफेस जैसा कारपेट जैसा कुछ ग्रो कर जाता है, उसे हम एल्गी कहते हैं. एल्गी एक ग्रीन कलर की ग्रास या प्लांट्स की जैसा होता है जिसके डिफरेंट पार्ट्स को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, यानी कि नीदर यू कैन फाइंड आउट द रूट, शूट और स्टेम्स. यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट, बट इट कम्स अंडर द कैटेगरीज ऑफ. सो एल्गी आर सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म विच आर यूजुअली एक्वेटिक इन नेचर. वी नो दैट दीज आर जनरली फाउंड वेयर देयर इज वाटर. They contain a cell wall and chlorophyll and can make their own food by photosynthesis. Earlier इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको प्लांटिक ग्रुप में रखा जाता था. ओके, क्योंकि उनके पास सेल वॉल भी होती है और क्लोरोफिल भी होती है, एंड वी नो कि ये सेम प्रॉपर्टीज प्लांट्स में भी पाई जाती हैं. एंड दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. एल्गी कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स आर डायटम्स, क्लेमाइडोमोनास एंड सीवीड. Protozoa, these are unicellular microscopic organisms similar to animals that can move about to capture food and are heterotrophic in nature. Protozoa भी unicellular microscopic organisms होते हैं, ठीक है. ये भी एक जगह से दूसरी जगह अपने फूड के सर्च में मूव करते हैं और अपने फूड को कैप्चर करते हैं. ऑफ कोर्स बिकॉज दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, तो इट इज हेटरोट्रॉफिक इन नेचर. These are also mostly aquatic in nature, just like algae. Amoeba, paramecium are some common examples of protozoa. We know and we have been studying that protozoas were the first organisms that were found on the earth when the life evolved on earth. जब धरती पे लाइफ की शुरुआत हुई थी यानी लाइफ बिगिन हुई थी, तो जो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स धरती पे फॉर्म हुए थे वो थे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स, दैट इज योर प्रोटोजोअन्स. इनसे ही बाद में फिर डिविजन्स होके या कुछ केमिकल चेंजेस आके यही सिंपल फिर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हुए थे. सो प्रोटोजोआस वर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू बी फाउंड ऑन अर्थ व्हेन द लाइफ evolved on earth. So okay, next is
फंजाई. प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल आर कॉल्ड फंजाई. यानी वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं होती और प्लांट जैसे दिखते हैं उन्हें हम फंजाई कहते हैं. फंजाई यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है. इट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन वार्म क्लाइमेट एंड मॉइस्ट प्लेसेस ऑल्सो. Fungi can be heterotrophic, saprophytic or parasitic in nutrition. Heterotrophic means, of course, it depends on others for its food. Saprophytic means it depends on dead and decaying matter. And parasitic also, that it lies on other organisms and causes harm in it. Example, yeast, rhizopus, mushroom, puffballs, etc. Now, viruses. Viruses are smaller than एनी नोन सेल. वायरसेस सबसे छोटे होते हैं. ठीक है. ऑफ कोर्स डिफरेंट वी नो वायरसेस. जस्ट नाउ वेरी कॉमन वायरस इज गोइंग ऑन, COVID-19 कोरोना वायरस. वी ऑल नो अबाउट इट. वायरसेस आर वेरी स्मॉल देन एनी नोन सेल. वायरसेस सबसे स्मॉल होते हैं. इन्हें हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं. वायरसेस आर कॉल्ड द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स. वाई? वो इसलिए कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है क्योंकि वायरसेस सराउंडिंग्स में यानी बिना किसी बॉडी के सर्वाइव नहीं कर सकता. वायरसेस को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए या रिप्रोडक्शन करने के लिए किसी एक बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है. जस्ट नाउ यू मस्ट हैव हर्ड कोरोना वायरस. लॉकडाउन क्यों किया गया है? लॉकडाउन इसलिए किया गया है ताकि इसकी चेन टूट सके. यानी कि वायरस किसी बॉडी में, अगर इन्वायरमेंट में कोई वायरस प्रेजेंट हो या फिर कोई बंदा इससे अफेक्टेड हो तो उस बॉडी से दूसरी बॉडी में वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाए. ओके. सो दैट मीन्स वी नो वायरसेस को अपने सर्वाइवल के लिए ऑलवेज एक होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है. विदाउट अ होस्ट वायरसेस कैन नॉट सर्वाइव. थैंक यू. एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर आई विल बी अपलोडिंग सून. सो गेट रेडी. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.